हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी पे। आज मैं दिया शर्मा आपकी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की क्लास लेने वाली हूँ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अगर आप सबने उसे देखा है तो आपने देखा होगा कि हमने यूनिट 1 से स्टार्ट किया था विद द इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम. Moving ahead, we have study of ultrastructure of bacteria and morphological classification of bacteria in today's lecture. So let's begin with our lecture. As today's topic is very important, which is study of ultrastructure of bacteria. So we are going to study it in depth and I'll try my best to explain you well. If you have not visited our channel and not viewed our previous lectures, so I request you to do view all the lectures on every Monday, Wednesday and Saturday. So starting with the ultrastructure of bacteria, we must know what is bacteria. Bacteria is a unicellular prokaryotic organism. Okay, as we have discussed what are prokaryotic organisms, which are not having membrane bound organelles and not having a membrane bound nucleus. Okay, so these are known as the prokaryotic structure as we have discussed in our previous lecture. So bacteria are also prokaryotic organisms which do not have which lack the organelles and nucleus. They lack membrane-bound organelles such as mitochondria, lysosomes, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, chloroplast, and vacuoles. Okay. Next, we have bacteria. Bacteria also lacks the two membrane-bound nucleus and nucleolus, because the eukaryotics does not have proper membrane-bound nucleus, so their nucleus is also known as the nucleoid. Okay, the size of a bacteria ranges from 0.2 micrometer to 0.1 mm. Okay, but most commonly in environment we can find bacteria from 0.5 to 5 micrometer. Under ultra microscope, the view of a bacteria looks like a capsule structure, because they are long cylindrical in shape, like somewhat like this. That's why their structure is capsule. Okay, depending on their shapes, they are of many shapes. First is coccus, the spherical shape. Next is rod, which is also known as the bacillus shape. Next is spherical shape, which is also known as the spiral shape, which is also known as the spirochetes or spiralum. Next is the filamentous shape. Okay, moving ahead, we will understand in depth the structure of the bacteria. So first one, the outermost layer of the bacterial cell is the capsule, which is about 0.2 micrometer thick and viscous in nature. Okay, capsule contains 98% of water and 2% of polysaccharides. So depending upon the thickness, capsules is of two types. First is the macrocapsule, which thickness is more than 0.2 micrometer, and the microcapsule has thickness less than 0.2 micrometer. So macrocapsule is visible under light microscope, but microcapsule is only visible under electron microscope. Next we have the flagella. It is a hair-like helical structure. Okay, hair-like helical structure, filamentous in nature, and इसकी जो length होती है, it is about 15 to 20 nanometer. Okay, it extends from the cytoplasmic membrane to the exterior of the cell, because जो मेन काम होता है फ्लैजेला का इज टू प्रोवाइड मोबिलिटी टू दी सेल, टू द बैक्टीरियल सेल. दैट इज वाई ये हमारा सेल मेम्ब्रेन से, सेल के इंटीरियर से शुरू होकर बाहर के इन्वायरमेंट तक एक्सटेंड होता है, सेल के बाहर के इन्वायरमेंट तक. ठीक है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली, फ्लैजेला, हुक एंड बेसल बॉडी. एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, आई हैव shown the diagram over here. The lowermost part is the basal body. Then we have the hook, which joins the flagellum and the basal body. So it is a flexible joint-like structure which connects both the parts of the flagella. And the upper part is the filament, which acts as propeller, because the main action or main property or main characteristic of this
flagella is to provide motility to the bacteria, so it acts as a propeller. It moves back and through with the help of the flexible hook joint. Okay, the filament is external to the cell wall. Okay, जो ये flagella है upper part है, ये cell wall के exterior में निकलता है बाहर. But जो हमारा hook है, hook and the basal body, they are embedded inside the cell envelope. Okay, the hook and the filament is composed of protein subunit, which is also known as the flagellin. It is an important protein. You must remember that hook and filament have the protein flagellin. Okay, and the main task of flagella is to provide mobility. Next we have the pili, or also known as the fimbriae. It is also hair-like structures, but it is more shorter, thinner and more numerous in number as compared to the flagella. Though they are hair-like structure, but proteinaceous in nature, they also extend from the cell membrane to the external environment of the cell. Okay, on basis on their type of the pili, they have two functions. First is the non-sexual or common pili. Okay, what it is antigenic in nature. Since it is antigenic in nature, it prevents the bacterial cell from phagocytosis. It does not allow the phagocytosis of the bacterial cell. Whereas the sex pili, it is helping in the conjugation process, because the conjugation process is the one through which the bacteria reproduce itself. So sex pili performs the major function over here. Moving ahead, we have the cell wall. Cell wall is thick layer which is present inside the capsule. Okay, because outermost is the capsule which protects the bacterial cell. Then comes the cell wall, which is made up of peptidoglycan layers. Okay, and we can identify, or we can characterize the bacterial cell on the basis of the type of cell wall it has, because there are two types of cell wall. One which shows gram staining, other which does not shows gram staining. Okay, so on the basis of that, we have gram negative and gram positive cell walls. The gram positive cell wall is the thicker one, about having thickness of 20 to 80 micrometer. Okay, of peptidoglycan layer, and the gram negative cell wall is only about 1 to 8 nanometer in thickness. Okay, and the basic function is to provide identification, protection and shape to the bacterial cell. Next we have the cell membrane. Okay, so cell membrane is a thin layer present in the prokaryotic cells. In prokaryotic cells, the जो cell membrane होती है हमारी, it is much thinner as compared to the eukaryotic cells. But similarly to eukaryotic cells, it is also phospholipidic in nature. It is a phospholipidic bilayer. Okay, so it is a phospholipidic thin cell membrane, but it is semi-permeable nature. अब semi-permeable क्या होता है? Semi-permeable is when it only allows some selective things to enter inside of the cell wall or cell material of the bacterial cell. It is known as the semi-permeable membrane, because everything cannot pass through this membrane. Okay, next we have the cytoplasm. Now, since we know that in prokaryotic cell the nucleus present, वो हमारा membrane bound नहीं होता है. So nuclear membrane is not present around the nucleus. So nucleus is like scattered inside the cytoplasm, because of which the cytoplasm is also known as the न्यूक्लियोइड. ठीक है, हम हमारे साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है. ओके, मूविंग अहेड, हम ये देखते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा 60% DNA, 30% RNA एंड 10% प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, उसके अंदर हमारा 60% DNA, 30% RNA और 10% प्रोटीन प्रेजेंट होता है. सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं. ये फर्दर अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, जो हमने पीछे बैक्टीरिया सेल की पिक्चर लगाई हुई है, तो इसमें भी आपको क्लियर होगा कि जैसे कि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस है, जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. ठीक है,
ये हमारा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर रफली स्कैटर्ड हुआ है। इसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसकी वजह से हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसे हम न्यूक्लियर भी बोलते हैं। इसके अलावा यू कैन सी दैट the outermost layer is the cytoplasm, then we have the cell wall, and then we have the plasma membrane. Okay, outside these longer structures are known as the flagellum, and these smaller hair-like structures which are present in numerous in number, are known as the villi or pillars. Okay, other structures are mesosomes, plasmin, okay, inclusion bodies, polyribosomes, etc., which we will see ahead. नेक्स्ट वी हैव द इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ का एक मेन टास्क है टू स्टोर द फूड फॉर द बैक्टीरिया सेल्स। ओके, ये हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इट हैज़ अ स्मॉल बॉडीज़, ओके, स्मॉल इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जिनके अंदर हमारा फूड स्टोर होता है फॉर द बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट वी हैव द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन टास्क क्या होता है? टू प्रोवाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। नाउ एज वी हैव सीन द डिफरेंस अर्लियर कि हमारा जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारा जो राइबोसोम है वो ATS टाइप का प्रेजेंट होता है। ओके, वी हैव सीन दिस कि हमारा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारा ATS टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। वेयर एज इन हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर हमारा 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे इन बैक्टीरिया 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट, बिकॉज हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसीलिए हमारे बैक्टीरिया के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। नेक्स्ट हमारे पास मीजोसोम्स है। मीजोसोम्स आर स्लाइटली इनसाइड द सेल वॉल। ओके, आप यहाँ पे ऐसे फिगर में देख सकते हैं, मैंने इंसर्कल भी किया हुआ है कि मीजोसोम्स लेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। ओके, दिस आर पार्ट ऑफ द आउटर लेयर बट इट इज कर्व्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म बिकॉज देयर मेन फंक्शन इज टू डू सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, ये हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। ओके, इसी के साथ हमारा जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो एंड होता है। ठीक है, फर्दर अगर हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में आप देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द बैक्टीरिया यहाँ पे हमारा मेजर 4 टाइप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, और फिफ्थ होती है हमारी अनयूजुअल मॉर्फोलॉजी। सो फर्स्ट है हमारी स्फीयर और दी कॉकस शेप। सेकंड होती है हमारी राउंड और दी राउंड एंडेड सिलेंड्रिकल शेप जिसे हम बैसिलस भी बोलते हैं। थर्ड होती है हमारी हेलिकली ट्विस्टेड शेप एंड फोर्थ होती है हमारी सिलेंड्रिकल कर्व्ड इन वन प्लेन। ओके, फिफ्थ हमारी होती है अनयूजुअल मॉर्फोलॉजीज लाइक जो शेप्स हमारी इन मतलब बैक्टीरियल शेप्स जो इन सब कैटेगरीज के अंदर नहीं आती है उसे हम बोलते हैं अनयूजुअल मॉर्फोलॉजीज। तो इन 4 बेसिक क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमारी सब क्लासिफिकेशन होती है जिन शेप्स में हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे स्फीयर शेप विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी कॉकस शेप। ओके, तो स्फीयर शेप में सबसे पहले हमारा आता है डिप्लोकोकाई। ठीक है, डिप्लोकोकाई कब होता है? जब ये स्फीयर और कोकस हमारे इन अ पेयर ऑफ 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे जॉइंट होते हैं यहाँ से। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो कोकस शेप है डिप्लोकोकाई, इसमें 2 स्फीयर्स पेयर में प्रेजेंट है। ओके, सो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोकोकाई प्रेजेंट होता है। ओके, सेकंड टाइप है हमारी टेट्राकोकाई। टेट्राकोकाई तब होता है जब हमारा जो कोकस शेप बैक्टीरिया है वो इन अ पेयर ऑफ 4 प्रेजेंट होता है, इन अ ग्रुप ऑफ 4 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे हम टेट्राड भी बुलाते हैं। ओके, तो दिस टेट्राड इज बेसिकली टेट्राकोकाई जब हमारे 4 कोकस एक साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेफेलोकोकाई। स्टेफेलोकोकाई इज द क्लस्टर व्हेन अ लार्ज क्लस्टर ऑफ कोकस आर प्रेजेंट ऑल टुगेदर, इसे हम हमारा स्टेफेलोकोकाई बोलते हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ स्टेफेलोकोकाई इज स्टेफेलोकोकस ऑरियस। ओके, ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई।
स्ट्रेप्टोकोकाई इज व्हेन जो हमारी जो कॉकस है स्फीयर शेप बैक्टीरिया है, ये हमारे एक चेन टाइप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लाइक ये जो चेन टाइप में ऐसे प्रेजेंट होगी कंटिन्यूसली, ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई बोले जाएंगे। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, ठीक है, इसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्सिने। सार्सिने तब होता है जब हमारे 8 स्फीयर्स और 8 कोकस एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ओके, व्हेन दे आर 8 इन नंबर, तो हम उसे सिंपली सार्सिने बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल होता है सार्सिने वेंट्रिकुलाई। ओके, सो इसको हम तब बोलते हैं जब हमारा 8 के पेयर में और 8 के नंबर में कोकस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है हमारा राउंड एंडेड सिलेंड्रिकल शेप, जैसे हम बेसिलस भी बोलते हैं। बेसिलस भी अगेन 2 तरह के होते हैं, एक होता है पेयर्ड और एक होता है चेन, ठीक है। जब हमारा इस तरह चेन की शेप में प्रेजेंट होता है, ओके, आप देख सकते हैं इसकी शेप कुछ ऐसे होती है, दोनों तरह से राउंड एंड इन और सिलेंड्रिकल शेप। ओके, लेकिन और जब हमारे ये बहुत सारे एक साथ चेन की तरह प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं चेन स्ट्रेप्टोबैसिला बैक्टीरिया। ओके, स्ट्रेप्टोबैसिली बैक्टीरिया जो ये चेन में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास बैसिलस एंथ्रासिस। ओके, हमारा बैसिलस एंथ्रासिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेप्टोबैसिलाई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लोबैसिलाई। डिप्लोबैसिलाई तब होता है जब ये 2 बैसिलाई हमारे एक साथ प्रेजेंट होते हैं इन अ पेयर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोबैसिलाई। ओके, नेक्स्ट हमारा 2 और रेयर केसेस में प्रेजेंट होता है जो लाइक बहुत लीस्ट इन नंबर, वो हमारा होता है एक तो फ्लैजिलेटेड रॉड्स और एक होता है हमारा स्पोर फॉर्मर। ओके, फ्लैजिलेटेड रॉड्स में क्या होता है कि जो ये बेसिलस शेप का हमारा बैक्टीरिया है, इसके साथ में बहुत सारे न्यूमरस फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, तो हम इसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है हमारा जिसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सैल्मोनेला टाइफी। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मर जिसमें एक साइड में स्पोर प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसके अंदर हमारा 2 ही हमारा राउंड एंडेड सिलेंड्रिकल शेप होता है, बेसिलस होता है, लेकिन इन वन साइड इसमें स्पोर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हेलिकली ट्विस्टेड सिलेंडर। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं स्पैरोकाइटिस या फिर स्पाइरलम, और अगर प्लूरल है स्पाइरला। ओके, इसमें बहुत डिप में आने की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट हम एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं लाइक विब्रियोस, स्पाइरला एंड स्पायरोकाइटिस। ओके, ये हमारे टाइप्स के एग्जांपल होते हैं जो कि स्पायरल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्पायरल यू कैन सी लाइक दिस टाइप ऑफ वेवी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, लाइक दिस इज नोन एज द स्पायरल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। Next we have the cylindrical curved in one place section structure of the bacteria, जिसका एग्जाम्पल है सेलेमोनाडास। ओके, नेक्स्ट हमारा पास होता है अनयूजुअल मॉर्फोलॉजीज सच एज स्क्वायर, फ्लैट शेप बॉक्स एंड अदर शेप्स, जिनकी हमारे कोई भी जो शेप है इन 4 क्लासिफिकेशंस के अंदर नहीं आती है, उन्हें हम बोलते हैं अनयूजुअल मॉर्फोलॉजीज। फॉर एग्जांपल कोकोबैसिलाई, लाइक जब हम 1 एंड 2 शेप को कंबाइन कर देते हैं साथ में तो वो हमारा बन जाता है कोकोबैसिलाई। ये इलांगेटेड स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होता है, जिसे हम ओवल शेप भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है कोकोबैसिलाई। और सेकेंड हमारा होता है फिलामेंटस शेप, और बैसिलाई दैट अकर्स इन लॉन्ग शेप। बैसिलाई का जो शेप होता है तो उसे हम थोड़ा इलांगेटेड टाइप में बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस शेप। ओके, इसको हम बोलते हैं हमारा कोकोबैसिलाई शेप। ओके, ओ आई एम सो सॉरी, फिलामेंटस शेप। जब बेसिली प्रेजेंट होता है इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग एलोंगेटेड फिलामेंटस। ओके, सो ये हमारी बेसिक मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की, ठीक है, और ये इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू हमारी आज की क्लास को अटेंड करने के लिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियो फ्रेंड्स। और आगे भी हमारी क्लासेस को देखने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।